اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت سپریم کورٹ میں وقف ایکٹ اور وقف قانون کو لے کر جو پہلا دن تھا سوال و جواب کا اور سنوائی کا، سماعت کا، وہاں سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ ماننی اچ نیالے نے کیندر سرکار سے، بی جے پی سرکار، گورنمنٹ یعنی مرکزی سرکار سے سوال کیا کہ بھیا مذہبی اداروں میں مداخلت کیوں؟ وقف بورڈ ایک مذہبی ادارہ ہے، دھارمک ادارہ ہے، اور ہمارے پیارے پیارے سنویدھان نے سب کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کریں، اور سب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اور وقف بورڈ خالص ایک مذہبی معاملہ ہے۔ تو سپریم کورٹ نے نریندر جی مودی کی بدمعاش سرکار سے سوال کیا کہ آخر آپ انٹرفیئر مذہبی اداروں میں مداخلت کیوں کر رہے ہو؟ اور ایک جملہ اور کہا انہوں نے کہ کیا ہندو بورڈ میں بھی مسلمان ہوں گے؟ واہ! یعنی وقف بورڈ میں ادھر مودی جی بدمعاشی کر رہے ہیں اور ہندوؤں کو ڈال رہے ہیں، واہ! تو پھر رام مندر میں مجھے بھی ڈالنا چاہیے۔ جی ہاں، تروپتی بالاجی مندر میں اور جتنے بڑے بڑے مندر ہیں وہاں پر بھی ہمیں ڈالنا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو عدالت نے کہا کہ وقف بورڈ میں صرف مسلم عہدیدار ہونا چاہیے۔ اور خبر ہے کہ آج دوپہر 2 بجے سے پھر سماعت ہوگی، سنوائی ہوگی۔ یعنی اب وقف بورڈ کو لے کر جو مسئلہ تھا چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی بینچ کے سامنے ہے، اور سنجیو کھنہ نے، چیف جسٹس نے زبردست انداز میں سپریم کورٹ نے مذہبی اداروں میں انٹرفیئر کرنے پر مرکزی سرکار، بی جے پی سرکار سے سوال کیا ہے۔ دیکھا جا رہا ہے مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں خوشی کی لہر ہے کہ ابھی فی الحال سپریم کورٹ پازیٹیو انداز میں پہلا دن رہا ہے۔ ناظرین، الحمدللہ ہمارے اپنے شہر جلگاؤں اور ہمارے اپنے ضلع میں زبردست انداز میں مسلمانوں کو بھی بیدار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وقف قانون کیا ہے، یعنی پہلے کیا تھا اور ابھی فی الحال 2025 میں جو بی جے پی نے بدمعاشی کی ہے اور ہر ڈرمی تاناشاہی کے انداز میں جو قانون بنایا ہے وہ کیا ہے، اس کو لے کر باقاعدہ سب سے پہلا کام ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو سمجھائے، بیدار کریں کہ یہ ہے کیا اور وقف ہے کیا، کیونکہ مسلمانوں کو بھی صحیح انداز میں معلوم نہیں ہے۔ تو گزشتہ کل الحمدللہ اقرا کالج میں بھی ہماری میٹنگ ہوئی، جس میں فیض پور سعودہ کے ذمہ داران آئے تھے،
वहाँ तफसीली बात हुई। और रात में फिर भुसावल शहर में चिराग हॉल में तमाम मसलक, तमाम फ़िरक़ों और तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान जमा थे और तमाम सियासी समाजी मिली ज़िम्मेदारान मौजूद थे। और गुज़िश्ता कल भुसावल में 2 घंटे का बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा, जिसमें अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, मैं, फारूक शेख साहब, मौलाना नूर मोहम्मद साहब और मौलाना अब्दुल हकीम साहब सब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वक्फ को लेकर उम्मत के सामने बात रखी और उम्मत को बेदार करने का काम किया और इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ ये भी समझाया कि हमारे आंदोलन, हमारे एहतजाज और हमारे मिशन को कोई ख़राब करने न पाए, इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तशद्दुद की राह नहीं चाहती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, आप जानते हैं कि संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में जो शाही जामे मस्जिद है, भगवा आतंकियों और हुकूमत की बदमाशी का शिकार हो गई। और आपको ये भी मालूम होगा कि कई मुस्लिम नौजवान शहीद भी हुए हैं। और उस तशद्दुद को लेकर जो वहाँ पर हुआ था, उसको लेकर एसपी समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क, इन पर भी बाकायदा यूँ समझिए कि कुछ न कुछ मामला दर्ज हुआ है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है, बात करते हुए ज़ियाउर रहमान बर्क ने लखनऊ में जो राजधानी है वहाँ मीडिया से बात करते हुए कहा कि जजों पर तो यकीन है मगर पुलिस की जांच पर यकीन नहीं। सच कहा उन्होंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस है, योगी आदित्यनाथ के इशारों पर काम करती है। जी हाँ, मार बेचारा मिश्रा खा रहा है तो चाकू मारने वाले पर तो कार्रवाई नहीं, मगर मिश्रा को जेल की सलाखों में ठूस दिया गया। यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस, मजलूमों को ही मारती है, मजलूमों को ही जेल की सलाखों में ठूसती है। तो यहाँ पर भी ज़ियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच पर यकीन नहीं, जजों पर तो यकीन है, इसलिए मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन किसी अहम मौजू पर हमारा रात 9 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होता है। आज भी बहुत अहम उन्वान पर 9 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि उस बयान को वक्त निकाल कर आप ज़रूर सुने, ख़ास तौर से उलमा, इम्मा और खुतबा इस बयान को ज़रूर सुने, ताकि आइंदा कल जुमा में तमाम लोगों तक पैगाम पहुँचाना आसान हो। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा प्यारा निर्णय और बड़ी प्यारी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली उर्दू को मजहब से जोड़ना बड़ा अफसोसनाक अमल है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवा आतंकवादियों ने इतना माहौल को ख़राब किया है कि बेचारी उर्दू जो हिंदुस्तान की ज़बान है, सबकी ज़बान है, उस उर्दू को भी मुसलमानों के साथ जोड़कर उर्दू के साथ भी नफ़रत करना शुरू की और उर्दू का हक़ बहुत मारा। दूसरी ज़बानों को जो हक़ मिला वो उर्दू को नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली उर्दू को मजहब से जोड़ना इंतहाई घटिया और अफसोसनाक अमल है। महाराष्ट्र के अकोला जिला के गांव पातुर में म्युनिसिपल इमारत पर उर्दू में नाम लिखने का मामला बीजेपी सुप्रीम कोर्ट ले गई, जहां बीजेपी को जूते पड़े, बीजेपी जलील हुई और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि बीजेपी उर्दू से भी नफरत इसलिए कर रही थी कि वो मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन बीजेपी के जाहिलों को, जंगलियों को, अनपढ़ों को, अनभक्तों को, पागलों को ये नहीं मालूम। जो जज ने कहा, जज साहब ने कहा कि उर्दू किसी मजहब की ज़बान नहीं, वो हिंदुस्तान की ज़बान है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के मुजफ्फरपुर से। हमारे रिपोर्टर फ़ैज़ान इलाही ने बताया कि मुजफ्फरपुर में आग लगने से 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हलाक हुए हैं और 15 से ज़्यादा अभी तक लापता है। और खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान ने बड़ा कदम इस मामले को लेकर उठाया है। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। ताहम चिराग पासवान ने अपनी साबिक पोस्ट में मरने वालों की तादाद 5 बताई।
बताई है। डीएम ने 4 की तस्दीक की है। चिराग पासवान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पहले से तय शुदा प्रोग्रामों को छोड़कर जल्द अज जल्द मुजफ्फरपुर पहुंचने का फैसला किया है ताकि इस अंदोनाक वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। यह है उनका बड़ा कदम। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 4 बच्चों की मौत के साथ साथ 15 से ज़्यादा लोग अभी तक लापता है और 50 से ज़्यादा घर इसमें राख हो गए हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक जिंदा सानिहा है। आइए दूसरी बड़ी खबर आ रही है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर रही है। जी हाँ, खबर यह है कि जस्टिस BR गोई अब मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। और गुज़िश्ता कल वक्फ बोर्ड को लेकर जो समाअत हो रही है, अभी फिलहाल चीफ जस्टिस है जस्टिस खन्ना, जिन्होंने गुज़िश्ता कल यूँ समझिए कि वक्फ के मसले को लेकर हुकूमत को घेर लिया। लेकिन ये जस्टिस खन्ना 13 मई को सुबुकदोश होंगे। 14 मई 2025 को नए चीफ जस्टिस यानी जस्टिस BR गोई हलफ लेंगे। अब दुआ करो कि जस्टिस खन्ना के दौर में ही वक्फ का मसला हल हो जाए और ये भी दुआ करो कि जस्टिस खन्ना जो है वो पूरी ताकत इंसाफ के साथ में इस मसले को हल कर दें, क्योंकि अभी तक के बाबरी मस्जिद का फैसला हो या बहुत कुछ ऐसे बड़े बड़े फैसले हैं जो मुल्क ने देखा और मुल्क मायूस हुआ है उन जजों से भी जिन्होंने हुकूमत के दबाव और प्रेशर में आकर गलत फैसले सुनाए हैं। इसलिए हम दुआ करते हैं कि जस्टिस खन्ना को अल्लाह ताकत दे, कुव्वत दे और वो इंसाफ को पूरी तरीके से बाकी रखते हुए जिस तरीके से कल उन्होंने पॉजिटिव रिमार्क दिया है ऐसे ही वो इंसाफ के साथ पॉजिटिव फैसला सुनाए। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा शरीफों की एक टीम है। हिंदू महासभा नाम से आप समझ गए होंगे कि शरीफ लोगों की टीम है। हिंदुस्तान के लिए बहुत योगदान, बड़ी कुर्बानियाँ दी है। अंग्रेज़ों से बहुत ज़बरदस्त इनके बाप दादा ने लड़े हैं और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है। अब उन्होंने आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने अनोखे तरीके से एहतजाज किया और SP MP के खिलाफ यानी समाजवादी पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके खिलाफ इन्होंने एहतजाज करते हुए अपने DNA का नमूना दिया है। जी हाँ, SP रुकन असेंबली रामजी लाल सम्मन के बयान के बाद मामला गर्म हो रहा है और हाल ही में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा MP रामजलाल सम्मन ने DNA के बारे में बयान दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि अगर आप मस्जिद के नीचे मंदिर कहते हैं तो हमें हर मंदिर के नीचे बौद्ध खानका कहना पड़ेगा। अब जैसे ये बयान आया तो अखिल भारत हिंदू महासभा नाराज हो गई और उन्होंने अनोखे तरीके से एहतजाज किया और अपना DNA टेस्ट के लिए खून के नमूने दिए। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि वो उनके नमूनों की जांच न हो, वरना फिर एक अलग बखेड़ा खड़ा हो सकता है और उनको परेशानी भी, खुद को भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि DNA हो सकता है कहीं और जगह का ना निकल जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब ट्रेनों में ATM की सहूलत मिलेगी, ATM मशीन रहेगी। रेलवे ने पहला तजुर्बा किया है। मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस मुल्क की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें ATM की सहूलत दस्तयाब है। बस दुआ कीजिए कि ATM मशीन सलामत रहे। कोई जैसे लोग मोबाइल लेकर भागते हैं हाथों में से और बहुत कुछ चोरी कर लेते हैं, तो ATM मशीन सुरक्षित रहे, इसकी भी दुआ कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये खबर मेरे लिए इतनी अहम नहीं थी, लेकिन ये खबर अहम है कि हिंदुस्तानी रेलवे का गुज़िश्ता कल 172वां यौम तासीस यानी बुनियाद का दिन था। जहां से पहली ट्रेन रवाना हुई थी वहीं रेलवे की विरासत को खिराजे तहसीन पेश किया गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 16 अप्रैल 1853 यानी 172 साल पहले थाने से बोरीबंदर यानी मुंबई तक 34 किलोमीटर तवील सफर पर रवाना होने वाली एशिया की पहली मुसाफिर ट्रेन की याद में बुध के रोज यानी गुज़िश्ता कल थाने रेलवे स्टेशन पर
हिंदुस्तानी रेलवे का 172वां यौम तासीस भरपूर उत्साह, ऊर्जा और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी उरूज पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र के 29 लाख नौजवान नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के दौरे हुकूमत में बेरोजगारी अपने उरूज पर पहुंच गई है। यानी जो मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल नई नौकरियां देने का दावा किया था, नई नौकरियां तो दे नहीं पाए हैं, बल्कि पुरानी नौकरियों को भी छीना गया है। और नए नौजवान जो डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, रियासत की रिपोर्ट आई है कि 29 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में हैं। ये चौंका देने वाला आदाद शुमार, ये आंकड़ा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने खुद ही जारी किया है। इसकी वजह से रियासत में महायुति सरकार पर शदीद तनकीद हो रही है और इसको लेकर अपोजिशन महायुति हुकूमत के खिलाफ जारहाना रुख दिखाई दे रही है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मेरे अपने गांव और मेरे अपने जिले की 2 बड़ी खबरें आ रही है। पहली खबर तो ये आ रही है कि वक्फ का जो काला कानून, जो शरारती कानून मुल्क के मुसलमानों के औकाफ की इमलाक और जायदाद को हड़पने की नापाक नीयत से जो लाया गया है, बनाया गया है, उसको लेकर पूरे मुल्क में आंदोलन हो रहे हैं। उसके खिलाफ एहतजाज मुजाहरे हो रहे हैं। गुज़िश्ता कल मेरे अपने शहर रावेर में भी ज़बरदस्त अंदाज में रावेर के मुसलमानों ने, जमात इस्लामी हिंद, वहदत इस्लामी और तमाम ही मसालिक के लोग इस आंदोलन में शरीक रहे और ज़ोरदार अंदाज में रावेर में भी आंदोलन हुआ, एहतजाज हुआ और तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया गया कि इस कानून को, काले कानून को रद्द किया जाए। और पुरअमन तरीके से शांततापूर्व अंदाज में ये आंदोलन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अपनी मुस्लिम समाज में जहां जहां भी आंदोलन हो रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने साफ तौर से कहा है कि सारे एहतजाज आंदोलन पुरअमन तरीके से हो, शांततापूर्व अंदाज में हो। मेरे अपने शहर के बेदार लोगों और बेदार जवानों ने जबरदस्त अंदाज में आंदोलन किया। और दूसरी खबर यह आ रही है कि एपीसीआर जलगांव ने शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर संजय निरुपम ने जो शरारती शरअंगेजी का जो बयान दिया है, उसके खिलाफ एपीसीआर जलगांव ने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जलगांव शाख ने शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर संजय निरुपम के एक बयान पर सख्त एतराज जताया। जी हां, एपीसीआर ने पुलिस इंस्पेक्टर को यह कहा कि संजय निरुपम मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने और समाज में दुश्मनी फैलाने का काम कर रहे हैं। और शिकायत में कहा गया कि संजय निरुपम ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज करने वालों को निपटने की धमकी दी। इस बयान को एपीसीआर ने इंतहाई खतरनाक और अक़लियती बिरादरी के लिए दहशतगर्द ठहराने वाला करार दिया है। इस बयान से मजहबी जज्बात मजरू होते हैं और अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि संजय निरुपम पर और ऐसे जितने भी जहरीले हैं इन पर कार्रवाई की जाए। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्वेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट